अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। उम्मीद करता हूँ डियर वीवर कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है चेन ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इन्फेक्शन that infection is a process in which disease causing organism invade and colonize into the tissue of a host. That process is known as infection. How this process occur? This process occur in the form of a chain. Therefore, this process is known as chain of infection. Now, I would like to tell you that this chain of infection actually contains 6 links. So what are those 6 links? I would like to show you in a diagram. The first link is agent. Any infectious, by agent we mean any infectious agent. Second link is reservoir. Third link is portal of exit. Fourth link is mode of transmission. Fifth link is portal of inlet or portal of entry. Sixth link is susceptible host, and then again agent. So these 6 links are known as chain of infection, or in other words you can say that how infection occur by connection of these 6 links. So what are these 6 links? We will discuss in the subsequent slide that what are these links. First of all, I would like to tell you about the bookish definition of a chain of infection. That chain of infection is a process that begins when an infectious agent leaves its reservoir or host through a portal of exit, and then this infectious agent is conveyed by some mode of transmission, then enter through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host. ये definition किस तरह complete होगा? तो इसके लिए we need to understand agent, portal of exit, mode of transmission, reservoir, portal of entry and host. Start with agent. That what do we mean by agent? By word agent, we mean that all infectious microorganism or all microorganism that are responsible for causing disease production in human being, which include viruses, bacteria, protozoa, parasites and fungi. So any disease causing microorganism is known as infectious agent. Second is the reservoir. That what do you mean by the reservoir of infection? The reservoir of an infectious agent is the habitat, is the place in which this infectious agent, which could be virus, bacteria, parasite, fungi or anything else, where this infectious agent normally lives, grow and multiply. So there are different types of reservoir, like human reservoir, animal reservoir or environmental reservoir. First of all, we are going to start with a human reservoir. So there are two types of human reservoir. One is cases and the other is carrier. By word cases, we mean that any person which is a diseased person with symptomatic illness. So he or she can be a reservoir of that particular disease by which it is infected. Second are carrier. What do we mean by carrier? Carrier, a person or animal without, here we need only human because we are discussing only human reservoir. So a person without apparent disease who harbor a specific infectious agent and is capable of transmitting that agent to other person, that person would be carrier. So human reservoir are two types, one is case and the other is carrier. Now there are different types of carrier, like asymptomatic carrier. Asymptomatic carrier are those carrier, the state that may occur in an individual with an infection that is inapparent throughout its course.
यानी कि कोई भी ऐसा डिजीज़ जो होस्ट में थ्रू आउट द कोर्स जो है इनअपेरेंट रहता है, एसिम्प्टोमेट्रिक रहता है, कभी भी जाहिर नहीं होता, जैसे इन केस ऑफ पोलियो वायरस में भी हो सकता है अगर पोलियो वायरस एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज कर ले, या अगर हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो अगर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कॉज करता है तो थ्रू आउट द कोर्स जो है वो सिम्टम्स जाहिर नहीं होते। लेकिन वीवर मैं आपको ये भी बताऊं कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस या मेनिंगोकोकस जो है ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। इन दैट केस ये फिर एसिम्टोमेटिक कैरियर नहीं रहेगा, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। सो इन केस ऑफ एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इट वुड बी एसिम्टोमेटिक कैरियर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्यूबेटरी, कन्वोलेसेंट और पोस्ट कन्वोलेसेंट कैरियर। एज आई टोल्ड यू कि कैरियर में साइन सिम्टम्स नहीं होते, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये वो पीरियड है जहाँ पे सिम्टम्स अभी जाहिर नहीं हुए होते। तो कुछ डिजीज़, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड में या कन्वोलेसेंट पीरियड में, कन्वोलेसेंट पीरियड कहते हैं वीवर रिकवरी पीरियड को, जब आपके साइन सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएं और आप रिकवर हो रहे होते हैं तो इसको कन्वोलेसेंट या इसके बाद वाले पीरियड को पोस्ट कन्वोलेसेंट पीरियड कहते हैं। तो इन तीनों पीरियड्स में भी एक्टिव साइन सिम्टम्स नहीं होते, तो इसलिए वो इन्फेक्शियस एजेंट जो इन स्टेट्स में कन्वर्ट होता है तो वी कॉल्ड इट कैरियर। तो उन पर्सन्स को फिर हम इन स्टेजेस में भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, क्योंकि इन स्टेजेस में वो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहा होता। सो द कैरियर स्टेट दैट मे अकर ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन, कन्वोलेसेंट और पोस्ट कन्वोलेसेंट पीरियड विद अ क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल डिजीज, यानी कि इसके बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद या कन्वोलेसेंट पीरियड से पहले इसमें क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल डिजीज़ हुआ होगा, जैसे इन केस ऑफ मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, तो इनके इंक्यूबेशन पीरियड में भी और कन्वोलेसेंट पीरियड में भी इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ एनिमल रिजर्वोयर। अच्छा, एनिमल रिजर्वोयर, एज आई टोल्ड यू के रिजर्वोयर इसे कहते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ रहता है, ग्रो होता है और मल्टीप्लाई होता है। सो वेन एवर एनिमल एक्ट एज अ रिजर्वोयर, सो इन दैट केस infectious agent transmitted from animal reservoir to human being and cause disease in human being, and that process is known as zoonosis. So infectious disease that are transmissible under normal condition from vertebrate animal to human being, that process is known as zoonosis. और zoonotic diseases में आपके पास ब्रोसिलोसिस है, एंथ्राक्स है, प्लेग है, रेबीज़ है, तो ये सारे जो है ये जूनोटिक डिजीज़ है, और इन डिजीज़ के लिए जो रिजर्वोयर है वो एनिमल रिजर्वोयर जो है वो एज अ सोर्स एक्ट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर है। इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर में जो मोस्ट कॉमन रिजर्वोयर है तो एक सॉइल है और एक वाटर है। सॉइल में जो कुछ एजेंट ऐसे हैं जो सॉइल में रहते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे स्पोर ऑफ टेटिनस है, आपने नाम सुना होगा उसका, क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनस का, ये एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो इसके स्पोर्स जो हैं वो सॉइल में रहते हैं, तो सॉइल जो है वो एक्ट करता है एज अ सोर्स या एज अ रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टेटिनस, या जिस तरह दूसरे फंगल स्पोर हैं, जिस तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस के स्पोर है, तो वो भी सॉइल में रहते हैं। तो उन कंडीशन में भी जो रिजर्वोयर है वो सॉइल है। या पूल ऑफ वाटर जो है, यानी कि पानी के ज़खायर जो है, ये भी एक्ट करते हैं एज अ रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जिस तरह लिजोनेरी डिजीज़ है, ये इतनी कॉमन डिजीज़ नहीं है, जिस तरह शिजेला डाइसेंट्री है, कोलरा है, तो उनके लिए भी जो रिजर्वोयर है वो वाटर है और ये इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर है। ठीक है, तो रिजर्वोयर को हमने 3 में डिवाइड किया, ह्यूमन रिजर्वोयर, एनिमल रिजर्वोयर और फिर इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर। इसके बाद हमारा जो है तीसरा चेन आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट का। ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये रिजर्वोयर में रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मली रहते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ग्रो होते हैं। अब इस रिजर्वोयर से बाहर आने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट जो है इट नीड अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि इसे एक रास्ता चाहिए ताकि वो रिजर्वोयर से बाहर चले जाए इन ऑर्डर टू कॉज इन्फेक्शन।
क्योंकि इन्फेक्शन होने के लिए 6 लिंक्स जो है वो कनेक्टेड होना ज़रूरी है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है इट इज़ अ पाथ बाय विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव द सोर्स होस्ट और रिजर्वोयर। अब पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट के जो एग्जांपल है तो उसमें एक रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जैसे लेट्स से कि कोई केस है एक्टिव डिजीज़ के साथ तो हम उसको ह्यूमन रिजर्वोयर कहेंगे। तो वो ह्यूमन रिजर्वोयर जो है वो अगर स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो वो रिस्पायरेटरी एरिसोल के साथ जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको बाहर फेंकता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है इट एक्ट एज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिजर्वोयर। ठीक है। या अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है तो इसमें वोमिटिंग है, या अगर फीसिस पास होते हैं तो उन फीसिस के साथ जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजन है या इन्फेक्शियस एजेंट है वो बाहर जाते हैं, जैसे इन केस ऑफ विब्रियो कोलरा है, कोलरा के केस में, या शिजेला के केस में शिजेला डाइसेंट्री है। सॉरी मैं ज़रा स्लाइड को मिस कर गया। यस अगेन, तो जिस तरह शिजेला के केस में, शिजिलोसिस के केस में शिजेला है, विब्रियो कोलरा है, विब्रियो के केस में कंपाइलोबैक्टर जेजनी है, और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू रिजर्वोयर से बाहर आते हैं। या स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो हैं ये भी पोर्टल ऑफ एग्जिट हो सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल रिजर्वोयर या इन केस ऑफ ह्यूमन रिजर्वोयर। ठीक है। और सॉइल और वाटर के रिजर्वोयर में फिर एग्जिट डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब एक दफ़ा इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो रिजर्वोयर से बाहर आ गया तो नाउ इट नीड अ मीडियम टू कन्वे। अब इस इन्फेक्शियस एजेंट को एक मीडियम चाहिए ताकि उसके थ्रू ये मूव कर सके इन ऑर्डर टू रीच टू द पोर्टल ऑफ एंट्री इनटू द ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है। ससेप्टेबल होस्ट में जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वहां तक पहुंचने के लिए अब इसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए। ठीक है। अब ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है। ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है देयर इज एसेंशियली इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द एजेंट फ्रॉम अ रिजर्वोयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इमीडिएट ट्रांसफर होता है इन्फेक्शियस एजेंट का, यानी जैसे ही रिजर्वोयर से इन्फेक्शियस एजेंट बाहर आता है पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट के थ्रू तो फौरन पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू वो इंटर होता है ससेप्टेबल होस्ट में। तो इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शियस एजेंट का फ्रॉम रिजर्वोयर टू ए ससेप्टेबल होस्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। आई एम सॉरी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, किसिंग कॉन्ट्री भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है ये हम कहेंगे कि अगर रिजर्वोयर जो है वो ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ अगर आप स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आते हैं या किसिंग करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। अगर एनिमल रिजर्वोयर है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इस तरह आ सकते हैं कि अगर आप उन एनिमल की केयर करते हैं, उनसे दूध लेते हैं या उनको कोई और हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी आप उनके साथ क्लोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। और अगर वो एनवायरमेंटल रिजर्वोयर है जैसे सॉइल है या जैसे वाटर है तो इन दैट केस अगर आप डायरेक्टली सॉइल के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो दैट वुड बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद रिजर्वोयर। और फिर इन केस में जो ट्रांसमिशन होगी इन्फेक्शियस एजेंट की तो वो ट्रांसमिशन होगी थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। दूसरा जो डायरेक्ट कांटेक्ट का फॉर्म है वो है ड्रॉपलेट स्प्रेड। ड्रॉपलेट स्प्रेड ये है कि जब आप कोई बंदा स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है या टॉकिंग करता है तो वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करता है, और वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट जो है उनमें फिर जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो पास वाला दूसरा पर्सन जो है अगर वो उन रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट को डायरेक्टली इनहेल करता है तो दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट from reservoir to susceptible host. So transmission by direct spray of relatively large short range aerosol
or a few feet before the droplet fall to the ground. ठीक है, how these aerosol are produced, how these droplets are produced, as I told you, by sneezing, coughing or even by talking. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में इमीडिएट ट्रांसमिशन नहीं होती. एन एजेंट इज कैरीड फ्रॉम अ रिजर्वोयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट by some mean like vehicle borne or vector borne or airborne transmission. So these three types of transmission are indirect transmission. What do we mean by these types? So I would like to discuss in the subsequent slide. First of all, vehicle borne. Vehicle borne ये है कि an infectious agent जो है that is carried from a reservoir to a susceptible host by inanimate intermediary. यानी कि इनएनिमेट कहते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, कि इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसको रिजर्वोयर से कैरी करते हैं आप ससेप्टिबल होस्ट तक बाय ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. तो इसको कहते हैं व्हीकल ट्रांसमिशन या व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. अब व्हीकल में क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंटामिनेटेड फूड है या कंटामिनेटेड वाटर है, तो अगर आप वो फूड एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई और उसको कंज्यूम करता है, तो उस फूड में फिर वो इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट होते हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट भी वो इंजेस्ट करता है. जैसे इन केस ऑफ टाइफॉइड है, पैराटाइफॉइड है, जैसे फूड पॉइजनिंग है बैसिलस सीरस की फॉर्म में, या स्टेफिलोकोकस ओरियस की वजह से है, या क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से है, शाइजिला डाइसेंट्री की वजह से डाइसेंट्री है, कोलरा की वजह से विब्रियो कोलरा है. तो जो विब्रियो कोलरा है तो वो आप फूड कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर में के थ्रू जो है ले जा सकते हैं रिजर्वोयर से ससेप्टेबल होस्ट तक. या जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड है, सो ब्लड कैन कैरी वायरल हेपेटाइटिस लाइक हेपेटाइटिस बी, सी और HIV और सिफिलिस और मलेरिया फ्रॉम रिजर्वोयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट. या थर्ड जो है फोमाइटीज़ है, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टॉयज़ है, हैंडकरचीफ है, बेडिंग है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, या और कोई दूसरा नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट जो रिजर्वोयर से, चाहे वो ह्यूमन रिजर्वोयर है, एनिमल रिजर्वोयर है या इन्वायरमेंटल रिजर्वोयर है, वो वहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर सकता है टू द ससेप्टेबल होस्ट. तो ये व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन जो है ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसमें इमीडिएट ट्रांसमिशन नहीं होती इन्फेक्शियस एजेंट की फ्रॉम रिजर्वोयर टू ससेप्टेबल होस्ट, बल्कि बीच में एक इंटरमीडिएटरी ऑब्जेक्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो लेकर जाता है फ्रॉम रिजर्वोयर टू होस्ट. अच्छा, व्हीकल बोर्न के अलावा वेक्टर बोर्न भी होते हैं जिनमें वेक्टर इन्वॉल्व होता है, और वो वेक्टर जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है फ्रॉम रिजर्वोयर टू अ ससेप्टेबल होस्ट. और वेक्टर्स जो हैं वो मॉस्कीटोज़ भी हो सकते हैं, वो फ्लीज भी हो सकते हैं, टिक्स भी हो सकते हैं, और फ्लाई भी हो सकते हैं. तो दीज वेक्टर्स जो हैं दे कैन कैरी इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम रिजर्वोयर टू द होस्ट. अच्छा, इसमें जो ट्रांसमिशन है वो दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है, दूसरी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है. मैकेनिकल ट्रांसमिशन हम उसे कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस एजेंट जो है दैट डज नॉट मल्टीप्लाई और अंडरगो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द वेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल जो शिजिला डाइसेंट्री है, तो वो फ्लाइज जो है उनके जो अपेंडेजेस हैं, जैसे अगर उर्दू में मैं कहूँ तो जो पैर जो हैं उनके साथ अटैच हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूल है और वो शेजिला डाइसेंट्री पेशेंट के स्टूल है, तो उसमें शेजिला मौजूद है और इस पे फ्लाइज बैठते हैं, तो उनके अपेंडेजेस के साथ जो है शेजिला अटैच हो जाता है और वो अपने अपेंडेजेस के साथ शेजिला को कैरी करते हैं और ससेप्टेबल होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं. बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ये है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो या वो मल्टीप्लाई होता है या किसी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इख्तियार करता है विद इन दी वेक्टर. जिस तरह मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम पैरासाइट मल्टीप्लाई होता है इन दी मॉस्कीटो, या लेशमीनिया के फॉर्म में अगर आप देखें तो सैंड फ्लाई जो वेक्टर है, तो वहाँ पे लेशमीनिया का पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई होता है. इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे वेक्टर के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो मल्टीप्लाई होता है, तो उसको फिर हम बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं. फाइनली ईयरबोर्न ट्रांसमिशन जो है ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है. इसमें दो तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं.
जो इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी कर सकते हैं फ्रॉम रिजर्वोयर टू ससेप्टेबल होस्ट। तो इसमें एक तो डस्ट पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल जो है वो कैरी कर सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट को फ्रॉम रिजर्वोयर टू ससेप्टेबल होस्ट। दूसरे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इसे कहते हैं जो ड्रॉपलेट आप रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जब ड्राई हो जाए तो देन यू कैन से कि दे आर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब किस तरह ये ट्रांसफ़र करते हैं? डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंगल स्पोर है, वो किसी बेड पे या किसी फ्लोर पे सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है, और या सॉइल में सेटल डाउन हो चुके हैं, तो अगर आप सफाई करते हैं या वाइंड आता है यानी कि तेज़ हवा आती है, तो उन फंगल स्पोर को दोबारा जो है सस्पेंड करती है एयर में, और फिर दूसरा जो ससेप्टेबल होस्ट है वो उन स्पोर को इनहेल करता है। तो दैट इज़ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू डस्ट पार्टिकल विच इज़ द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। दूसरा क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है, तो ये एज आई टोल्ड यू कि दीज आर द ड्राई रेजिडियो ऑफ द ड्रॉपलेट दैट हैव बीन कफ्ड और स्नीज इनटू द ईयर। ठीक है, और दे आर जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और ड्रॉपलेट जो है, इनमें यूजुअली साइज का फ़र्क होता है। जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, दे आर यूजुअली स्मॉलर देन द 5 माइक्रोन इन साइज, वाइल ड्रॉपलेट आर यूजुअली लार्जर देन द 5 माइक्रोन इनटू द साइज। तो ये इस तरह होता है कि कभी कभी कोई पेशेंट जो है, जैसे ह्यूमन रिजर्वोयर है, वो कफ करता है, स्नीज करता है, वो ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करता है, और वो ड्रॉपलेट ड्राई होते हैं और फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे हैं जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जब वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हवा में सस्पेंड होते हैं, तो दूसरा ससेप्टेबल होस्ट आता है, वो उनको इनहेल करता है, तो वो इस तरह से इन्फेक्ट हो सकता है, और इस ट्रांसमिशन को फिर हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डायरेक्टली ड्रॉपलेट से और इनडायरेक्टली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दोनों से ट्रांसमिशन होती है। तो इट इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड मोर ऑफन इनडायरेक्टली थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई देन डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड। ठीक है, इस तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस है जो फंगल डिजीज़ है, उसके स्पोर भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के ज़रिए जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। लिजोनेला निमोफिलिया जो है, लिजोनेरी डिजीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि वहाँ पे क्लोज एयर कंडीशन या क्लोज जो है सेंट्रल हीटिंग या सेंट्रल कूलिंग होती है, तो वहाँ पे फिर पूल्स ऑफ वाटर बनते हैं, जिसकी वजह से लिजोनेरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो लिजोनेरी डिजीज़ जो है ये भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं ये है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। अब जब इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट हो गया किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू, मीडियम के थ्रू ये मूव हो गया, तो इट नीड अ पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, अ पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? एन एजेंट जो है दैट एंटर अ ससेप्टेबल होस्ट थ्रू अ पोर्टल ऑफ एंट्री, और पोर्टल ऑफ एंट्री मस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द टिश्यू इन विच द एजेंट कैन मल्टीप्लाई और टॉक्सिन कैन एक्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर इन्फेक्शियस एजेंट का एक प्रेफर टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे वो जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे साल्मोनेला है, उसको अगर आप ओपन वाउंड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो वाउंड इन्फेक्शन नहीं करता, वो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं काज करेंगे। लेकिन अगर वो जीआईटी में अंदर जाता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसीलिए पोर्टल ऑफ एंट्री जो है वो इट मस्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द टिश्यू जिसमें वो इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर वो किसी और पोर्टल ऑफ एंट्री से एंटर होता है तो फिर इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, या अगर टॉक्सिन है, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग है या दूसरे जो टॉक्सिन मीडिएटेड फूड पॉइजनिंग है, तो उस केस में टॉक्सिन जो है वो उस पोर्टल ऑफ एंट्री से एंटर होने चाहिए, ताकि वहाँ पे उसके वो वाले सेल मौजूद हो जहाँ पे वो एक्शन कॉज कर सके, जिसकी वजह से वो साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अच्छा, ऑफन ऑर्गेनिज्म जो है यूज द सेम पोर्टल टू इंटर अ न्यू होस्ट दैट दे यूज टू एग्जिस्ट द सोर्स होस्ट, यानी कि रिजर्वोयर से या सोर्स से जिस पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट से ये बाहर आते हैं, तो यूजुअली इन्फेक्शियस एजेंट जो है वहीं पोर्टल ऑफ एंट्री यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्वोयर जो है
वो कफिंग या स्नीजिंग के ज़रिए रिस्पायरेटरी एरिसोल प्रोड्यूस करता है या रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करता है, तो उनमें इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो उस इन्फेक्शियस एजेंट को ससेप्टेबल होस्ट में भी यूजुअली रिस्पायरेटरी ट्रैक ही चाहिए होता है। तो अगर कोई करीबी पर्सन है वो इनहेल करता है और उनको रिस्पायरेटरी ट्रैक में अंदर लेकर जाता है, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो यूजुअली जो इन्फेक्शियस एजेंट है, तो इट यूज द सेम पोर्टल for enter same portal for exist from reservoir, and it needs same portal to enter into the new host। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, इट कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। अच्छा, होस्ट जो है ये हम किसे कहते हैं? सो अ ससेप्टेबल होस्ट इज द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। The host is a person or any other living organisms that can be infected by an infectious agent under normal condition। यानी कि अगर वो इन्फेक्ट हो सकता है तो तब वो ससेप्टेबल होस्ट है। अगर वो इन्फेक्शियस एजेंट उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता तो फिर वो ससेप्टेबल होस्ट नहीं होगा, वो रेजिस्टेंट होगा। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ससेप्टेबल होस्ट, क्योंकि ससेप्टेबल होस्ट होगा तब इन्फेक्शन होगा, ससेप्टेबल होस्ट नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और जो ससेप्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट है, तो इट डिपेंड ऑन जेनेटिक फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जनरल फैक्टर में पेशेंट का बैलेंस डाइट आता है, उसका एज आता है, उसका जियोग्राफिकल फैक्टर्स आते हैं, इन्फेक्शियस डोज आता है, ये सारे जनरल फैक्टर में आते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है पेशेंट की वैक्सीनेशन की कंडीशन आती है कि पेशेंट वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो इन चीज़ों पे पेशेंट की जो ससेप्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। अब the question is this कि does an infection need all 6 links to be connected? The answer is yes। किसी भी इन्फेक्शन को होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये 6 लिंक कनेक्टेड हो। अगर आप इनमें से कोई एक लिंक भी ब्रेक करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और यही वो स्ट्रेटजी है which we use to prevent or control the infection, that we try to break even one link into this 6 link in order to prevent the infection। ठीक है, अब मैं बहुत मुख्तसर आपको बताता हूँ कि इन 6 लिंक को आप कैसे इन 6 लिंक में से किसी भी एक लिंक को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शियस एजेंट की बात करते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट को आप ट्रीटमेंट के ज़रिए किल कर सकते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्टिव डिजीज़ है, ह्यूमन पर्सन है, उसको एक्टिव डिजीज़ है, तो उसको आप ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उसको किल करते हैं। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो है दूसरे मतलब कोई भी है, अगर वायरस है तो एंटीवायरस देते हैं, फंगस है तो एंटीफंगल देते हैं, मतलब कि उसको एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देते हैं इन ऑर्डर टू किल दैट इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, दूसरा जो है वो है रिजर्वोयर का। तो हमने रिजर्वोयर को भी अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमने रिजर्वोयर को एलिमिनेट करना होता है। जैसे अगर कोई ह्यूमन बंद है और वो इन्फेक्टेड है, तो वो सोर्स है, रिजर्वोयर है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं ताकि ट्रीटमेंट के बाद जो है वो हेल्दी बन जाए और वो इट विल ही और शी विल नो मोर बी ए रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वाटर है, तो अगर वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो हम उसको फिर ट्रीट करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं ताकि वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो किल हो जाए। इसी तरह अगर कोई कारपेट है या कोई और सरफेस है जहाँ पे अगर कोई फंगल स्पोर है या बैक्टीरियल स्पोर है तो हम उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं ताकि वहाँ से भी जो है हम ऑर्गेनिजम्स को उस रिजर्वोयर को हम लोग एलिमिनेट कर सकें। तो इस तरह हम रिजर्वोयर को एलिमिनेट करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक द लिंक ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम लोग पोर्टल ऑफ एग्जिट को ब्लॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक है तो हम मास्क लगाते हैं ताकि वो जो है कफिंग और स्नीजिंग के साथ जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बाहर ना फेंके। जैसे सर्जन जो है वो सर्जरी के दौरान सर्जिकल मास्क लगाते हैं ताकि वो जब आपस में कम्युनिकेशन करे तो जो उनके मुंह में जो नॉर्मल फ्लोरा है तो वो स्टेराइल टिश्यू में ना इंट्रोड्यूस करे। इसी तरह अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का है या कोरोना वायरस का है या दूसरे किसी इन्फ्लुएंजा वायरस का है, तो हम उसके जो है जब वो स्नीज़
स्नीज करता है, कफ करता है, तो हम उसे कहते हैं कि आप अपने मुंह को ढांपें ताकि वो जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है उसको हम ब्लॉक कर सके। इसी तरह अगर हैंड के थ्रू जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो हैंड जो है हेल्थ केयर वर्कर के या इन्फेक्टेड पेशेंट के ये भी रोल प्ले करता है जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको ट्रांसमिट करने में, तो हैंड वॉशिंग पे हम जोर देते हैं ताकि ये भी एक पोर्टल ऑफ एग्जिट है। इसी तरह अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डिजीज़ है तो हम फिर पेशेंट को ये कहते हैं कि वो प्रॉपर जगह पे स्टूल पास करे ताकि वो स्टूल जो है फूड को या वाटर को कंटामिनेट ना करे। और अगर उसके हैंड कंटामिनेट होते हैं तो हम उसे हैंड हाइजीन का कहते हैं ताकि वो हैंड के ज़रिए वाटर और फूड को कंटामिनेट ना करे। तो हम सारे पोर्टल ऑफ एग्जिट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक द लिंक। ठीक है, अगर ये पॉसिबल ना हो तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनको हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, जैसे मॉस्कीटो है, वेक्टर है, वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो रिजर्वोयर से होस्ट की तरफ ससेप्टेबल होस्ट की तरफ लेकर जाते हैं। तो हम मॉस्कीटो को किल करते हैं या मॉस्कीटो की एक्सेस को ब्लॉक करते हैं बाय मॉस्कीटो रिपेलेंट या मॉस्कीटो नेट जो है। या कभी कभी हम जो है अगर जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ के जो वेक्टर है उनको किल करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। या अगर इन्वायरमेंटल सोर्स में है तो वहाँ पे वाटर जो है, फूड जो है वो इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो हम उनको जो है ट्रीट करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दूसरे ऐसे कोई भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकते हैं, जैसे हैंड शेक में हम हैंड शेक रोकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसको रोकते हैं ताकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसको प्रोवाइड ना हो, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एक जगह से रिजर्वोयर से ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसमिट ना हो सके। और अगेन अगर यहाँ पे भी हम नहीं रोक सके तो पोर्टल ऑफ एंट्री पे, यानी कि ससेप्टेबल होस्ट की जो पोर्टल ऑफ एंट्री है तो उनको हम ब्लॉक करते हैं। जैसे अगर वो इनहेल करता है तो हम उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ओपनिंग है उनको जैसे इन केस ऑफ टीबी के जो वर्कर है तो वो N95 रेस्पिरेटर पहनते हैं ताकि जो टीबी के एरोसोल प्रोड्यूस होते हैं वो इनहेल ना कर सके। ठीक है, या हैंड के थ्रू हम हैंड शेक अगेन यहाँ पे रोकते हैं। या दूसरे बहुत सारे ऐसे रास्ते जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ससेप्टेबल होस्ट में एंटर हो सकते हैं, तो हम उस पोर्टल ऑफ एंट्री को फिर ब्लॉक करते हैं। ठीक है, फाइनली अगर ये भी हम नहीं कर सकते तो ससेप्टेबल होस्ट को हम रेजिस्टेंट होस्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हेपेटाइटिस बी की एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई होस्ट है तो उसने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगाई तो वो हेपेटाइटिस बी के लिए ससेप्टेबल है, तो हम उसको वैक्सीनेट करते हैं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, तो वो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट ससेप्टेबल होस्ट से रेजिस्टेंट होस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह टाइफाइड के वैक्सीन हम लगाते हैं तो रेजिस्टेंट होस्ट हम बनाते हैं। इसी तरह हम हेपेटाइटिस ए वायरस के वैक्सीन लगाते हैं तो हम हेपेटाइटिस ससेप्टेबल होस्ट को कन्वर्ट करते हैं रेजिस्टेंट होस्ट में। या जो पोलियो वैक्सीनेशन हम करते हैं ताकि जो है हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए और ससेप्टेबल होस्ट जो है वो रेजिस्टेंट होस्ट में कन्वर्ट हो जाए और इन्फेक्शन ना हो जाए, और हम इस लिंक को फिर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ससेप्टेबल होस्ट को रेजिस्टेंट होस्ट में कन्वर्ट करने से। तो ये 6 लिंक है, इनमें से किसी भी लिंक को हम ब्रेक करते हैं। जिस भी लिंक के बारे में हमारे पास मालूमात हो और इस लिंक को ब्रेक करने के लिए हमारे पास टूल हो तो हम उस लिंक को ब्रेक करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल और प्रिवेंट द इन्फेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो या आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो यू कैन राइट मी एन ईमेल ऑन khuramtalvi@gmail.com, या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कमेंट में जो है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिंक को भी अपलोड कर दूं। आई होप व्यूअर कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, हमारा चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू, फी अमानिल्लाह।